جی تو بچوں، آج آپ کو اشرف صبوحی کے سبق داستان پرستان کی شہزادی کے اگلے 2 صفحات کی بلند خوانی، الفاظ کے معنی اور وضاحت کرائی جائے گی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سبق جو ہے وہ کافی طویل ہے اور اس کے جو جملے ہیں، ریڈنگ ہے وہ کافی وضاحت طلب ہے، لہٰذا 1 یا 2 لیکچر میں اس کی ریڈنگ کی وضاحت جو ہے وہ ممکن نہیں۔ لہٰذا اس سبق کی ریڈنگ جو ہے وہ میں نے 3 لیکچرز میں تقسیم کی ہے اور لیکچر نمبر 3 میں انشاءاللہ ہم اس سبق کی ریڈنگ اور وضاحت مکمل کریں گے، اور لیکچر نمبر 4 میں آپ کو انشاءاللہ سوال کے مشقی معروضی سوال نمبر 3، 4، 5، 6، 7 اور 8 جس میں کہ حصہ معروضی کتابی مشق کا اور حصہ قواعد شامل ہے، انشاءاللہ مکمل کرائی جائے گی۔ اور آخری لیکچر میں ہم اس سبق کے جو شارٹ آنسر کوشچن جیسے آپ کہتے ہیں، مشقی سوالات کے جوابات مکمل کریں گے، اور اس طرح سے انشاءاللہ ہمارا یہ سبق پرستان کی شہزادی مکمل ہوگا۔ جی تو بچوں، آئے سبق کی ریڈنگ کی طرف۔ میں بڑے نخروں سے جایا کرتی تھی، سیدہ نبی کہتی ہیں میں بہت نخروں سے جایا کرتی تھی، ایسے بے وقت اور اپنے بھون کی پکوائی ہوئی چیز، یعنی اپنی پسند کی، اپنی من پسند کی، جیسے آپ کو جو آپ کی فیوریٹ ڈش ہوتی ہے تو اس طرح سے، یعنی وہ کہتی ہے اپنے پسند کی پکوائی ہوئی چیز چھوڑ کر کھڑے ہو جانا میری عادت کے بالکل خلاف تھا، لیکن ہونے والی بات میں نے ذرا انکار نہ کیا۔ لیکن وہ کہتی ہیں کہ ہونے والی بات کو کون ٹال سکتا ہے، لہٰذا کچھ ایسا یعنی وہ تو یہ سمجھتی ہے نا کہ شاید کوئی میرے اوپر جادوئی کیفیت تھی کہ میں نے ذرا انکار نہ کیا اور جیسے بیٹھی تھی سفید چادر سر پر ڈال سوار ہو گئی، یعنی روانہ ہو گئی، کیونکہ وہ پالکی بھجوائی تھی نا تو اس لیے وہ کہتی ہیں سوار ہو گئی، اور یہ یاد آپ نے رکھنا ہے، سفید چادر ڈال۔ نواب صاحب کا محل میرے گھر سے کوئی 2 آنے ڈولی ہوگا، یہ 2 آنے فاصلے کا نام ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ آبجیکٹیو میں آتا ہے، یعنی ڈولی یعنی ڈولی میں بیٹھ کر جانا تھا، جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں ڈولی کی، اب تو تصویر بھی دکھا دی ہے، تو سرکار نے ڈولی بھجوائی تھی، یعنی خیر وہ تو ایک میسج تھا جو کہ ایک رانگ میسج تھا، تو وہ کہتی ہیں کہ جو ڈولی آئی تھی تو ڈولی میں بیٹھ کر جانے کا جو راستہ تھا وہ 2 آنے فاصلے پر تھا، تو 2 آنے ڈولی ہوگا، یعنی ڈولی میں بیٹھ کر جانا تو 2 آنے کا فاصلہ تھا۔ قاضی واڑے سے نکلے، کہاں سے روانہ ہوئی وہی، یعنی جہاں وہ رہتی تھی اس جگہ کا نام قاضی واڑے تھا، قاضی واڑے سے نکلے اور خانم کا بازار آیا، یہ سب بیٹا آپ نے یاد رکھنا ہے۔ پہلے تو مجھے کچھ خیال نہ ہوا، یعنی وہ کہتی ہیں پہلے تو مجھے کچھ خیال نہ ہوا، یعنی پہلے میں نے نوٹس نہ کیا کہ میں کسی غلط راستے پہ جا رہی ہوں، جب بہت دیر ہو گئی اور ہٹو بچوں کی آواز نہ آئی۔ ہٹو بچوں کا لفظ جو تھا وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈولی کو 2 یا 4 آدمیوں نے اٹھایا ہوتا ہے، تو وہ آگے سے راستہ لینے کے لیے، جیسے آج کل کے دور میں تو گاڑی ہارن بجا کے تو راستہ جو ہے وہ لیتے ہیں، تو اس وقت ہٹو بچوں کی آواز لگا کر راستہ لیا جاتا تھا۔ بازار کے چراغ بھی جھلکتے ہوئے دکھائی نہ دیے، یعنی چونکہ شام کا وقت تھا تو ظاہر ہے بیٹا اس وقت کوئی بجلی تھوڑی ہوتی تھی، تو اس وجہ سے وہ شام کو چراغ جلا دیے جاتے تھے روشنی کے لیے، تو وہ کہتی ہیں بازار کے چراغ بھی مجھے آس پاس کوئی جلتے ہوئے دکھائی نہ دیے، تو پردے کی جھری کھولی، جیسا کہ میں نے آپ کو ڈولی اور پالکی کی تصویر دکھائی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں اندر بیٹھنے کا جو باہر نکلنے کا راستہ ہے تو وہاں پہ آگے ظاہر ہے اس میں خواتین کو بٹھا کے لے کے جایا جاتا تھا، آدمیوں کو تو نہیں بٹھاتے، تو وہ آگے پردہ سا ہوتا تھا، تو وہ کہتی ہیں جو پردے کی جھری کھولی، یعنی پردہ تھوڑا سا ہٹا کر کھولا، جھری سوراخ یا درمیان میں سے تھوڑا سا یعنی ہٹا کے دیکھنا تو اس کو جھری کہتے ہیں، تو کہتی ہیں جو پردے کی جھری کھولی تو ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی پالکی کے پاس بول رہا ہو، منہ نکال کر جو دیکھا، جیسے ابھی دیکھے پہلے ڈولی کی بات ہوئی ہے، 2 آنے ڈولی پر ہوگا اور اب پالکی، تو پالکی اور ڈولی ایک ہی چیز ہے جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا، تو کہتی ہیں جب میں نے باہر دیکھا تو ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی پالکی کے پاس بول رہا ہے، منہ نکال کر جو دیکھا تو بیگم کیا کہوں، ایک بے چاکی شکل کا آدمی
बेचाकी, बेढंगी, खौफनाक शक्ल का आदमी था, बकरे का सा मुंह। ये अब आपने मतलब ये सवाल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है ये कि जब सैयदानी बी ने पालकी से बाहर देखा तो यह आपके आदमी किस शक्ल का था? तो वो एक बेचाकी शक्ल का आदमी था, बकरे का सा मुंह, घोड़े की सी टांगे और पालकी आप ही आप चली जाती थी। यानी कि वो पालकी उठाने वाला कोई नहीं था, कोई आदमी नजर नहीं आ रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि जैसे पालकी जो है वो हवा में उड़ी जा रही है। जैसे कि आपने जिन्नों और परियों के बारे में सुना हुआ है बेटा, ना कहार थे ना कहारियां। कहार कहते हैं जो डोली उठाकर ले जाने वाले आदमी, और ना कहारियां। कहारियां औरतें, कहार मुजक्कर है और कहारियां मुन्नस है। तो डोली लेकर चलने वाले, डोली लेकर चलने वालियां, यानी ना को किसी मर्द ने डोली उठाई हुई थी और ना कोई औरत थी। अब तो डर के मारे मेरा दम घुटने लगा, आंखें बंद कर ली। कहती अब तो जो है मुझे बहुत शदीद खौफ आने लगा और मैंने आंखें बंद कर ली और कलमा पढ़ने लगी। जैसे कि उसने बेगम को शुरू में बताया कि पहली दफा जब मैं गई तो मैं बहुत डरी, मेरा कलेजा मुंह को आने लगा, लेकिन बाद में फिर मुझे बिल्कुल भी खौफ नहीं आता था। तो ये वो पहली दफा की सिचुएशन बयान कर रही हैं कि मैंने आंखें बंद कर ली और कलमा पढ़ने लगी, ढेर होकर रह गई, यानी ऐसे लगा जैसे मैं बेजान हो गई हूँ। मिनट 2 मिनट के बाद फिर हिम्मत की और अव्वल मरना आखिर मरना, फिर मरने से क्या डरना, और ललकार कर बोली। ये लाइन थोड़ी समझने वाली है कि कहती हैं मिनट 2 पहले तो मैं बिल्कुल बेजान हो गई, लेकिन फिर मिनट 2 मिनट के बाद इस सिचुएशन में रही और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी हिम्मत की। और जैसे हम बाज़ औक़ात सोचते हैं ना कि आज भी मरना है और कल भी मरना है, आखिरकार तो मरना है जो इस दुनिया में आया है, तो फिर मरने से क्या डरना। तो अव्वल मरना, पहले मरना, आखिर मरना, बाद में मरना, फिर मरने से क्या डरना, यानी मौत तो आनी है तो फिर डरना कैसा। और ललकार कर बोली, अरे जवान मर्द, तू कौन है, जिन या भूत? याद रख मैं सैयदानी हूँ, मुझको बता, नहीं तो जल कर राख हो जाएगा। यानी वो अपनी तरफ से उसको डराने वाले अंदाज में कहती हैं कि मैं ऊंची आवाज से बोली कि ए जवान, तू कौन है जो अपनी मौत को आवाज दे रहा है, तू जिन है या भूत है? याद रख मैं भी सैयदानी हूँ, मुझको बता, नहीं तो जल कर राख हो जाएगा। भला चाहता है तो मुझे यहीं उतार दे, यानी अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो मुझे यहीं उतार दे। इसने कहा, सैयदानी भी घबराओ नहीं, हम और हमारा बादशाह सैयदों को बहुत मानते हैं। वो यहाँ पे कहती है ना, मैं भी सैयदानी हूँ, जैसे कि आप जानते हैं कि सैयद मतलब जात का लोग बहुत एहतराम करते हैं, हम सब एहतराम करते हैं। तो वो यानी जवाब देता है आगे से, यानी जवाब मिलता है सैयदानी बी को कि घबराओ नहीं, हम और हमारा बादशाह सैयदों को बहुत मानते हैं, खातर जमा रखो, इत्मीनान रखो, कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारी शहजादी की शादी है, कपड़े सीकर चली आना, जितना मांगोगी इनाम मिलेगा। लो देखो, वो हमारे सामने बादशाह का महल है। बड़ी मुश्किल से डरते डरते आंखें फाड़ कर देखा तो वाकई पालकी एक आलीशान दरवाजे पर रखी थी। रोशनी ऐसी थी कि दिन मालूम होता था। अब ये सवाल आता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में कि परिस्तान का मंजर कैसा था। तो यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि जब पालकी एक आलीशान दरवाजे के सामने रखी गई तो रोशनी ऐसी थी कि दिन मालूम होता था, सुई गिर पड़े तो उठा लो, यानी इतनी रोशनी थी कि अगर सुई भी गिर पड़े तो वो भी नजर आती थी। और मजा ये था कि सूरज था ना चांद ना फानूस कहीं नजर आते थे। यानी वो बता रही हैं कि और मजा ये कि सूरज था ना चांद, यानी ना चांद था ना सूरज ना फानूस कहीं नजर आते थे, ना लालटेन। लालटेन भी जिसमें लाइट्स, यानी वो जिसमें वो एक दिया टाइप चीज होती है, उसमें ऑयल डालते थे और रोशनी की जाती है। तो चोबदार यानी गार्ड या मुहाफिज, बारीदार मर्द हैं, यानी वो कहती हैं कि रोशनी बहुत खूबसूरत रोशनी थी। और चौबदार यानी जो बाहर महल के बाहर मुहाफिज खड़े थे वो मर्द हैं। इधर के उधर, उधर के इधर दौड़ रहे हैं, सब इधर उधर दौड़ रहे थे। आसमान पर से अजब अजब तरह के बाजों की आवाजें आ रही थी। ये तमाशा देखकर
मैं सारी मुसीबत भूल गई। यानी वो रंगा रंगी और जो खूबसूरत कैफियत थी। अब यहाँ से ये मैंने आपको बताया कि वहाँ का मंजर कैसा था, रोशनी ऐसी थी यहाँ से लेके, तो ये यहाँ बाजों की आवाजें आ रही थी। यहाँ तक इसका जवाब है। तो वो कहती हैं कि ये तमाशा देखकर मेरा सारा डर खौफ दूर हो गया और मैं सारी मुसीबत भूल गई। मैं हैरान थी कि ये किस बादशाह का महल है, ये गहमा गहमी रौनक तो हमारे बादशाह के यहाँ भी नहीं होती। किस्से कहानियों में जैसी परियों का जिक्र सुना है। सैयदानी भी कहती हैं कि मैंने किस्से कहानियों में जैसी परियों का जिक्र सुना है। ऐसी एक परी शानों पर बाल बिखरे हुए, बाजुओं पर यानी शानों पर बाल बिखरे हुए और उसके बाजुओं पर जिसको आप बेटा विंग्स कहते हैं, मेरे पास आई और ये जैसे आप लफ्ज बोलते हैं ना माहीन, ये माहीन नहीं है, ये महीन यानी बारीक आवाज में बोली, यानी खूबसूरत और बारीक आवाज में बोली, नाजुक आवाज में बोली। सैयदानी भी बड़ी राह दिखाई यानी बहुत इंतजार करवाया। हमारे बादशाह और बादशाह बेगम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आओ चलो मैं तुमको महल के अंदर ले चलूं। मैं पालकी से उतरी और चादर को अच्छी तरह ओढ़ इस परी के साथ साथ चली। क्या कहूँ। अब वो बताती हैं कि जब वो महल के अंदर जाती हैं तो अंदर का मंजर क्या था। क्या कहूँ, अंदर क्या बहार थी। हजारों परियां, गोरे गोरे रंग, बूटा सा कद। ये बेटा शायरी में मिसाल दी जाती है लंबे कद के लिए। बूटा असल में लंबे बूटा पौधे को कहते हैं। तो जिस तरह से लंबा पौधा यानी पौधा जो कि खूबसूरत शेप भी उसकी होती है और हाइटेड भी होता है, तो इस तरह से बूटा सा कद यानी लंबे कद की। ये आपसे सवाल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि परिस्तान में परियां कैसी थी। हजारों परियां, गोरे गोरे रंग, बूटा सा कद, जर्क बर्क कपड़े। जर्क बर्क का मतलब है चमकीले भड़कीले चमकते हुए। हंसती चुगले करती, हंसती यानी हंस रही थी और एक दूसरे से मजाक कर रही थी। चुगले करना, अटकेलियां करना, मजाक करना। अहली गहली फिर रही थी यानी इधर उधर हंसती मजाक करती खेलती हुई फिर रही थी। चमन ऐसा कि ना देखा ना सुना, यानी बाग इतना खूबसूरत था, इतने प्यारे रंग रंग के फूल थे कि जो ना आज तक मैंने देखे थे और ना ऐसे फूलों के बारे में सुना। हर दरख्त का तना, यानी ये एक अलग से सवाल है कि वहां पर दरख्त कैसे थे। ये जहन में रखिएगा बेटा, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है कि परिस्तान में दरख्त कैसे थे। ये पहले तो आपने परियों के बारे में पढ़ा। हर दरख्त का तना यानी दरख्तों के तने कैसे थे। हर दरख्त का तना चांदी का, सोने की शाखें, जमुर्द के पत्ते। ये आप देखें कि दरख्त के जो तने थे जिनको आप ब्रांचेस कहते हैं इंग्लिश में, वो सिल्वर की थी और उसकी जो शाखें थी वो सोने की थी और पत्ते जमुर्द के। फलों की जगह कहीं लाल, लाल जो है वो जिसको आप हीरे जवाहरात और कहते हैं, फलों की जगह लाल लटक रहे थे। कहीं नीलम, कहीं पखराज। ये मुख्तलिफ किस्म के जो नगीने होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जवाहरात होते हैं, उनके नाम है। आपने सुना होगा मोतियों के बारे में कि ये नीलम है, ये याकूत है। तो इसी तरह से नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि फलों की जगह, वैसे तो आमतौर पर दरख्तों पर फल लगे होते हैं तो वो कहते हैं फलों की जगह कहीं लाल लटक रहे थे। जाहिर है कि दरख्त के तने चांदी के थे, सोने की शाखें थी, जमुर्द के पत्ते थे, तो उन पे फल तो नहीं लगे हुए थे, तो फलों की जगह मुख्तलिफ किस्म के लाल यानी मोती लटक रहे थे। कहीं नीलम और कहीं पखराज, ये कीमती पत्थरों के नाम। फलों पर ये आलम था जैसे हीरे चमक रहे हों। फूलों पर ये आलम था, यानी फूल इतने खूबसूरत थे, यानी आलम था, उनकी सूरत ऐसी थी जैसे हीरे चमक रहे हो। कलियां थी कि सुराही दार होती। फूल से पहले बेटा कली होती है ना, फूल खिलने से पहले जो है वो आपने देखा होगा कली, तो कलियां थी
यानी इतनी खूबसूरत कि ऐसे लगते थे जैसे सुराही दार मोती, यानी कि सुराही कहते हैं जो पतली गर्दन वाले, ऐसे लगता था जैसे पतले पतले खूबसूरत मोती हो। खुशबू से दिमाग महका जाता था, यानी उन फूलों की खुशबू इतनी अच्छी थी, दिल को भाने वाली थी कि दिमाग तक महक रहा था। हौजों का पानी, अल्लाह अल्लाह, हौज को एक गहरी सी जगह होती है जहाँ पर के पानी स्टोर किया जाता है, तो हौजों का पानी, अल्लाह अल्लाह, यानी इतना साफ सुथरा, चांदी के वर्क बिखरे हुए मालूम होते थे। यानी वो बड़े बड़े जो गहरे प्याले की तरह जगह बनी हुई थी जहाँ के पानी स्टोर था। जैसे बेटा चश्मा तो बड़ा होता है ना, तो हौज एक खास मखसूस जगह बनी होती है जहाँ के पानी इकट्ठा किया जाता है। तो सैयदानी भी बता रही है कि वहाँ पानी इतना शफाफ और साफ और चमकता हुआ था कि ऐसा लगता था जैसे कि चांदी के वर्क बिखरे हुए हैं। वर्क पत्ते को कहते हैं। फवारों में से मोतियों की बौछार हो रही थी, यानी फवारे, फाउंटेन जिनको आप इंग्लिश में कहते हैं, यानी फवारों से पानी इतना खूबसूरत जो है वो निकल रहा था। ऐसे लगता था कि वो पानी नहीं बल्कि मोतियों की बारिश, बौछार बारिश हो रही। चलते चलते वो कहती हैं, जब मैं परी के साथ बादशाह और मलका बेगम से मिलने जा रही थी तो उसके साथ चलते चलते एक बारादरी में पहुंचे। बारादरी की सजावट क्या बयान करूं। बारादरी का मतलब होता है जिसके 12 दरवाजे हो। ये जब शाहाना माहौल, जो बादशाही किलों का माहौल होता है, वो आपने देखा होगा। किसी बच्चे ने पाकिस्तान में लाहौर में शाही किले गए हैं या लाहौर में आपने बारादरी देखी है तो आपने देखा होगा कि ऐसे दरवाजे बने होते हैं बड़े बड़े। तो चलते चलते एक बारादरी में पहुंचे। बारादरी की सजावट क्या बयान करूं। किले के दरबार भी देखे, मगर उस जैसा समा आज तक नजर से नहीं गुजरा। सैकड़ों सुर्ख, सब्ज, नीली, जर्द, ऊदी, सफेद कुर्सियां बिछी थी। ये आपने वहां पे किस तरह की कुर्सियां बिछी हुई थी। सुर्ख, सब्ज, नीली, जर्द, ऊदी, सफेद कुर्सियां बिछी थी। रंग बिरंग के बलोर की थी। बलोर यानी तरह तरह के रंग की थी, या तरह तरह के डिजाइन की थी, या किसी और चीज की। ऐसी शफाफ, यानी इतनी शीशे की तरह थी कि आर पार निगाह गुजर जाती थी। यानी इतनी साफ और शफाफ थी, ऐसे रंगों की थी और ऐसे डिजाइन था कि उनके आर पार निगाह गुजर जाती थी। और उस पर हसीन हसीन परिजात जगमगाते लिबास पहने बड़े गुस्से से बैठे थे। यानी उन कुर्सियों पर हसीन हसीन परिजात जगमगाते लिबास, खूबसूरत लिबास पहने हुए बड़े दूसरे से, बड़े यानी तहके से और बड़ी शान से, दूसरे से शान से बैठे। बीच में नमगीरे के नीचे एक बड़े याकूत के तख्त पर, जिसमें हीरे और पन्ने की पिचकारी का काम था, यानी एक बड़े याकूत के तख्त पर एक बहुत बड़ा तख्त था। याकूत बेटा एक कीमती जो है वो पत्थर का नाम है। तो याकूत का यानी एक तख्त था जिसमें हीरे और पन्ने की पिचकारी यानी खूबसूरत नक्शो निगार का काम हुआ था। बादशाह और बादशाह बेगम अजब शान से, यानी अजीब शान से, खूबसूरत शान से बैठे हुए थे। बादशाह बेगम के पहलू में एक लड़की कोई 14-15 बरस की। ये आपने याद रखना है कि बादशाह और बेगम के पहलू में जो लड़की बैठी थी उसकी उम्र कितनी थी, 14-15 बरस की। और वो उस लड़की का हुलिया कैसा था, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है। ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि उसकी उम्र क्या थी, 14-15 बरस। और ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के बादशाह पहलू के बेगम में जो लड़की बैठी हुई थी, जिसके कपड़े जो वो शहजादी थी असल में उसी के कपड़े सिलवाने के लिए बुलवाया गया था, तो उसका हुलिया कैसा था। उसका चेहरा जैसे चौदहवीं
रात का चांद, जुल्फें खुली हुई, कई रंग के पर, और ऐसे चमकदार कि आंखें नहीं ठहरती थी। सर पर नीम ताज रखे बैठी थी, और तीनों की पोशाकें, यानी बादशाह की, बादशाह बेगम की और शहजादी की, यानी तीनों की पोशाकें, पोशाक है, पोशाकें जमा है पोशाक की, और पोशाक कहते हैं कपड़े, यानी तीनों के ड्रेसेस, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे, एक रंग के तीनों के, यानी अब आप ये देख लें कि इसका इतना मटेरियल है कि आपका शार्ट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से। तो उसका यानी बादशाह बेगम के पहले में जो लड़की थी वो 14-15 बरस की थी, चेहरा चौधरी चांद, रात का चांद, जुल्फें खुली हुई, यानी उसके बाल खुले हुए थे, कई रंग के पर लगे हुए थे, आंखें ऐसी चमकदार थी कि उस पर आंख नहीं ठहरती थी, यानी इतनी खूबसूरत थी कि देखा नहीं जाता था। सर पर नीम ताज, यानी ऐसे थोड़ा सा ताज रखे बैठी थी, और तीनों के कपड़े एक जैसे थे। तो बताऊं, घड़ी में 4-4 रंग बदलती थी, यानी कि उनके कपड़े ऐसे थे कि वो इतने चमकीले भड़कीले थे कि एक घड़ी में, एक पल में 4-4 रंग आते जाते थे। बेटा जाहिर है इस बात का अब आप कहेंगे कि हकीकत से तो कोई ताल्लुक नहीं, तो ये तो परिस्तान, यानी जहाँ पे एक जादुई सिचुएशन होती है, मैजिकल सीन होता है, तो जाहिर है वहाँ के लिए तो ऐसी बातें कही जा सकती हैं। मैं आगे तो बढ़ ही रही थी, मैं आगे तो बढ़ रही थी मगर हाथ पांव कांप रही थी, यानी वो कहते हैं कि मैं आगे तो बढ़ रही थी, आहिस्ता आहिस्ता आगे करीब जा रही थी तख्त के, लेकिन मेरे हाथ पांव कांप रहे थे, डर से नहीं हैरानी से। कहती मैं डर नहीं रही थी लेकिन हैरान हो रही थी। जाहिर है बेटा सारी बातें जो है वो मतलब एक ख्वाब की सी कैफियत थी कि या अल्लाह ये कौन लोग हैं, मैं जाग रही हूँ या ख्वाब में, ये परिस्तान की सैर है, और अगर जागते में कोई परी या देव मुझे यहाँ उड़ा लाया है तो देखिए घर उल्टा जाना भी होता है या नहीं। वो कहती है कि मैं सोच रही थी कि मैं ख्वाब देख रही हूँ या जागते में हकीकत है, और अगर कोई हकीकत में मुझे यहाँ उठा लाया है तो देखिए वापस घर उल्टा जाना भी होता है, यानी वापस उल्टा उल्टा जाना, यानी वापस जाना भी होता है या नहीं। इस सोच में तख्त के पास पहुंच गई, यानी यही सोचते सोचते मैं तख्त के पास पहुंच गई। बादशाह मेरी घबराहट देखकर मुस्कुराए और बादशाह बेगम ने मुझसे कहा आओ सईदानी भी आओ। मिजाज तो अच्छा है, तबीयत तो ठीक है ना, मैंने सुना है कि रास्ते में तुम बहुत डरी। मैं बोली हजूर को दुआ देती हूँ, और हजूर डरना कैसा, यानी सईदानी भी ने कहा कि मैं आपको दुआ देती हूँ, डरना कैसा, वो तो अल्लाह ताला ने मदद की, नहीं तो जान निकलने में कसर ही क्या रही थी। यानी वो कहती हैं कि डरना कैसा, वो तो अल्लाह ताला ने मेरी मदद की, वरना यानी जिस तरह से ये मुझे उठा के लाए हैं और जो यहाँ सब कुछ मैं देख रही हूँ, आपने तो जान निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सदके मौला के नाम पर, अल्लाह यानी अल्लाह के नाम पर बादशाह और सारे दरबारी सरूकात खड़े हो गए, यानी बादशाह और सारे दरबारी जो थे वो खड़े हो गए, सरूकात यानी जिनके लंबे कान थे, और बादशाह फरमाने लगे सैयदानी भी तुम जानती हो हमारे यहाँ इस नाम की कितनी इज्जत की जाती है, यानी अल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की। मैंने दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि जो कुछ भी हो ये लोग हैं तो मुसलमान। जाहिर है बेटा वो अगर अल्लाह का नाम सुनकर और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर सब खड़े हो गए अदब से, और उन्होंने कहा कि हम इस्लाम का बहुत अदब करते हैं, तो सैयदानी भी कहती हैं कि मुझे तसल्ली होगी और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चाहे कुछ भी है लेकिन ये लोग मुसलमान हैं और आप किसी बात का डर नहीं। बादशाह बेगम हमको गुनाहगार न करो, एक कुर्सी की तरफ इशारा करके बोली बैठ जाओ। हाँ तुम डरी क्यों थी, यानी वो सैयदानी बी से पूछती हैं। मैंने कहा सरकार डरने की बात क्यों न थी, यानी सैयदानी बी सरकार बादशाह बेगम को, यानी जो मलका होती है उनको कहती है कि डरने की बात क्यों नहीं थी, एक अकेली, यानी मैं अकेली थी, दूसरी तरफ सुनसान जंगल था, फिर जो ये मेरे साथ था इसकी सूरत ऐसी डरावनी थी, यानी जो मुझे लेकर आया कि मेरे औसान जाते रहे, यानी मेरे होश उड़ गए खौफ के मारे। तो ये सुनकर शहजादी खूब हंसी और बोली अम्मा बेगम बकर गधा मुआ
बड़ा शरीर है, ये मुआ है, मुआ लिखा हुआ है। तो नाम उसका बकर गदा था। तो ये आपको एमसीक्यूज में आता है कि जो जिन वहां से सैयदानी बी को उठा के लाया था उसका नाम क्या था? बकर गदा। बकर गदा मुआ बड़ा शरीर है, इसने कहीं अपनी शक्ल दिखा दी होगी। क्या शरीर मतलब शरारती है। शहजादी कहती है कि ये बड़ा शरारती, इसने अपनी शक्ल दिखा दी होगी। अब मेरे पेट में फिर हौल उठने लगे। सैयदानी बी कहती हैं कि मेरे पेट में फिर हौल उठने लगे कि ये सारी सूरतें भी नकली ना हो, कि यानी ये चेहरे बदलते रहते हैं। तो ये जो मुझे इतने खूबसूरत लोग नजर आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि इनकी शक्लें भी नकली हों। और बोला बोला कर चारों तरफ देखने लगी। बोला बोला कर यानी कि जैसे बंदा परेशान होकर देखता है चारों तरफ। बादशाह बेगम समझ गई कि शहजादी की बातों से सैयदानी के दिल में हमारी सूरतों की तरफ से कुछ शुबा पैदा हो गया, यानी कुछ शक पैदा हो गया। वो मुस्कुराकर बोली, सैयदानी भी डरो नहीं, हम सब की शक्लें असली हैं, बल्कि परीजादों की सारी ऐसी ही खूबसूरत शक्लें हैं, यानी परीजाद जो है जैसी तुम देख रही हो। मेरी लड़की सुहेल परी जिसने जिसका जिक्र किया है, ये अब आपसे एमसीक्यूज में बेटा पूछा जाएगा कि जो सैयदानी भी जिसके कपड़े सीने गई थी, बादशाह की जो बेटी थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सुहेल परी। ये पूरे चैप्टर में एक ही जगह पे जिक्र हुआ है, सुहेल परी। मेरी लड़की सुहेल परी ने जिसका जिक्र किया है वो जिन है। वो कहती हैं कि हम परिजात जो है वो खूबसूरत ही होते हैं और इनकी शक्लें असली होती हैं। और अभी मेरी बेटी सुहेल परी ने जिसका जिक्र किया, जिसका नाम बकर गदा है, वो परिजात नहीं बल्कि वो जिन है। और जिन अलबत्ता वजा वजा की शक्लों के होते हैं। वजा वजा का मतलब है यहाँ पे तरह तरह की, जिसको आप इंग्लिश में डिफरेंट कहते हैं। खातिर जमा रखो, तसल्ली रखो, तुम्हारे सामने कोई जिन या देव बुरी सूरत बनाकर नहीं आएगा। ठीक है, तो वो कहती है तसल्ली रखो, आप कोई तुम्हारे सामने बुरी सूरत बनाकर नहीं आएगा। इतने में खानों के ख्वान उतरने लगे। खानों के यानी दस्तरखान, यानी तरह तरह के खाने सामने आने लगे, उतरने लगे। जाहिर है वहां मैं जैसे बता रही हूँ कि वहां का माहौल जादुई था कि अचानक उसके सामने तरह तरह के खाने पेश होने लगे। वो ऐसा नहीं था कि कोई उठा के ला रहा था, यानी सामने खुद ब खुद से उसके आने लगे। खासा चुना गया, यानी खास खास खाने उसके सामने रखे गए। खाना क्या था? अल्लाह की कुदरत का करिश्मा। अब ये आपसे पूछा जाएगा कि मतलब खाना कैसा था। एक एक बालिश, बालिश बेटा फिंगर को कहते हैं, एक एक बालिश के पौधे फलों फूलों से लदे हुए सामने थे। खुशबू की लिपटें आ रही थी, मगर मैं क्या खाती? ना किसी किस्म की रोटी थी, ना सालन, ना पुलाव था, ना जर्दा। जाहिर है वो तो इंसानों में से थी सैयदानी भी, तो वो तो ऐसी चीजों से फेमिलियर थी, रोटी सालन पुलाव जर्दा। तो कहती हैं हक्का बक्का एक एक का मुंह देख रही थी कि बादशाह बेगम मुस्कुराकर बोली, सैयदानी भी देखती क्या हो, खाती क्यों नहीं? ये परिस्तान का खाना है, तुम मेहमान हो, हाथ बढ़ाओ और भी खाएं। यानी हाथ बढ़ाओ, खाना शुरू करो तो और भी खाएं। मैंने कहा सरकार कोई, यानी वो कहती हैं कि तुम मेहमान हो, पहले तुम शुरू करो तो और भी खाएं, यानी बाकी लोग भी शुरू करें। मैंने कहा सरकार कोई खाने की चीज हो तो खाऊं। ये तो नगोड़े, नगोड़े यानी वो मतलब जो है वो मुहावरतन कहती हैं कि ये तो नगोड़े दरख्त हैं, यानी वो जो खाने थे उनके सामने उनको वो दरख्त कहती हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है परिस्तान के खाने थे तो इंसानों के खानों से डिफरेंट थे। और इनमें जो फल फूल लगे हैं वो भी अल्लाह मारे सचमुच के नहीं दिखाई देते। शहजादी अल्लड़ ने मेरे इस कहने पर एक फरमाइशी कहका लगाया। यहाँ पे ये शहजादी अल्लड़ कोई नाम नहीं, शरारती शहजादी अल्लड़ शरारती को कहते हैं, यानी जो शहजादी बादशाह बेगम की बेटी थी जिसका नाम ऊपर आपने पढ़ा। तो शहजादी अल्लड़ ने मेरे इस कहने पर एक फरमाइशी कहका लगाया और कहने लगी, सैयदानी भी जैसा सुना था कि आदमजाद बड़ा भोला होता है, तुम्हें वैसा ही पाया। यानी शहजादी शरारती शहजादी कहती है कि जैसे सुना था कि जो आदमजाद यानी जो इंसान होते हैं बड़े भोले होते हैं, वाकई बिल्कुल तुम तो वैसी ही हो। तुम बिस्मिल्लाह करके कोई फल तोड़ो और खाओ, तो जिस खाने का दिल में ख्याल करोगी वैसी मजा आएगा। अब ये है कि परिस्तान का खाना कैसा था? तो परिस्तान का खाना
यानी ऐसा था कि यानी वहाँ के फल कैसे थे ये पूछा जाता है। तो वहाँ के फल यानी अगर कोई फल तोड़ते थे उसको खाएं तो जिस खाने का ख्याल दिल में लाया जाता तो उसका वही टेस्ट। यानी अगर फर्ज करें कोई भी फल तोड़ के, तो अगर उसको सेब का जायका दिमाग जहन में उसका ख्याल लेके आएंगे तो उसको सेब का टेस्ट आएगा। ठीक है। बेगम, यकीन मानो एक जर्द जर्द जो फल तोड़कर मैंने मुंह में रखा। यानी वो कहती हैं सैयदानी भी जो है वो मीर साहब की बेगम को ये कहानी चूंकि किस्सा सुना रही थी, तो कहती हैं कि बिल्कुल मेरी बात का यकीन करो कि एक जर्द जर्द रंग का फल था, वो तोड़कर जो मैंने मुंह में रखा, क्या कहूँ, दिल्ली में तो किसी ने ऐसे जायके का बोंट पुलाव खाया ना होगा। यानी जाहिर है से जो सैयदानी भी थी वो तो फल मुंह में रखते ही उन्होंने बोंट पुलाव का ख्याल जहन में लेके आई, क्योंकि वो आपने शुरू में पढ़ा ना कि बोंट पुलाव अम्मा बी को बहुत पसंद था, सैयदानी बी को। मीर साहब की बीवी बोंट पुलाव जो घर में छोड़कर गई थी वो ही पहले याद आया। बड़ी लड़की, किले में तो आप बहुत जाया करती थी। यानी मीर साहब की बड़ी लड़की कहती है किले में तो आप बहुत जाया करती थी, क्या वहां भी कभी ऐसे मजे का पुलाव नहीं खाया? सैयदानी, हुसैनी बादशाह के खास रकाबदार के हाथ के बड़े बड़े तारीफी खाने बीसियों मर्तबा खाए होंगे। ये वो जो इंसानों वाले जगह पे रहती थी तो वहां के बारे में, वहां के बादशाह का जिक्र करती है कि हुसैनी बादशाह के खास रकाबदार, यानी जो बावर्ची खाने में खाना बनाता था तो उसके हाथ के बड़े बड़े मैंने तारीफी खाने, यानी जिन खानों की तारीफ की जाती थी, बीसियों मर्तबा, कई मर्तबा खाए। ये बीसियों का लफ्ज आप आराम सुकून में 9th में पढ़ चुके हैं। मगर बीवी, बीवी से मुराद यहाँ बेगम साहब का मैंने आपको पहले बताया। वो बू बास यानी वो खुशबू, वो आबो नमक, आबो नमक का मतलब है जायका, ही कुछ और था। यानी कहती हैं कि जो परिस्तान में मैंने खाया उसकी खुशबू और उसका जायका ही कुछ और था। हाँ तो बहन बस फिर क्या था, जो जो खाने खाए थे बल्कि जिनका नाम ही सुना था, इनका ख्याल करती कि और अल्लाह तेरी शान, वही मजा आता गया। अचंभे की बात है, हैरानगी की बात थी कि जब एक फल तोड़ती, ये वाला क्वेश्चन आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में बार बार पूछा गया और बोर्ड में भी ये कई बार आया है कि वहां के फल कैसे थे, तो ये बेटा यहाँ से आप मार्क कर ले कि जब एक फल तोड़ती तो इसकी जगह फौरन दूसरा फल निकल आता। फूल कलियों को जो चखा मिठाइयाँ थी, तो वहां के फूलों का जायका क्या था? फूल कलियों को जो चखा तो ऐसे उनका टेस्ट था जैसे स्वीट्स मिठाइयों का होता है। ऐसी ऐसी नफीस हल्की खुश जायका कि हर नवाले में रूह ताजा होती चली गई। प्यास मालूम हुई तो पानी का ख्याल आते ही याकूत का गिलास खुद ब खुद आकर मुंह से लग गया। यानी जब उनको प्यास, कहती है मुझे उसका महसूस हुई तो खुद ब खुद याकूत बेटा बहुत ही कीमती जो है एक पत्थर है, उसका नाम है, तो कहती है उसका गिलास खुद ब खुद मेरे मुंह से आकर लग गया। याकूत का गिलास और ऐसा हबाब, हबाब कहते हैं बुलबुला, जैसे आपने 9th में नज्म पढ़ी, सॉरी गजल पढ़ी, हस्ती अपनी हुबाब की सी है पानी के बुलबुले की मानद है। तो यहाँ पे हबाब से मुराद है पानी, और ऐसा हबाब का के बाहर से पानी छम छम करता दिखाई देता था। यानी इस तरह से शीशा, शीशे की तरह शफाफ, और ऊपर से याकूत के गिलास में तो ऐसे लगता था कि जैसे पानी छम छम करता हुआ, वो बहुत यानी बहुत ही खूबसूरत और खुशबूदार पानी था। डर के मारे मैंने जोर से होंठ भी नहीं भींचे कि कहीं किनारा टूटकर मुंह में न चुभ जाए। यानी देखें कितनी खूबसूरत जुमला बयान किया है कि वो कहती है ग्लास इतना नाजुक और पानी इतना शफाफ और नाजुक दिखता था और छम छम करता दिखता था कि मैंने डर के मारे, अब ये नहीं कि पानी देख के डर गई, यानी जैसे आप कोई शीशे का ग्लास नाजुक सा पकड़े तो इस डर से कि कहीं टूट ना जाए। तो कहती है कि जब मैं पीने लगी तो मैंने जोर से होंठ भी नहीं दबाए। जब आप पानी का ग्लास मुंह को लगाते हैं तो होंठ बेटा ऐसे दबाते हैं ना अंदर घूंट ले जाने के लिए, तो कहती है मैंने होंठ भी नहीं भींचे, बंद नहीं किए कि कहीं शीश मतलब ग्लास का किनारा टूट कर मुंह में ना चुभ जाए। अल्लाह अल्लाह, पानी को ना पूछो, ऐसा मीठा, ऐसा मुअत्तर, अत्तर वाला, खुशबूदार, ऐसा सफेद पानी तो नहीं होता। ना जाने क्या चीज थी। सब के बाद मैंने सोचा पत्तों को भी देखना चाहिए, साथ ही पान का ख्याल भी आया। बेटा पान, पान के पत्ते में ही होता है ना,
تو آپ کو پتہ ہے جو پہلے لوگ تھے وہ پان کے بہت شوقین تھے، اور ابھی بھی ہندوستان میں زیادہ لوگ جو ہے وہ تو ان کا ڈیلی یوز میں جو ہے. تو میں پان آج بھی بہت کم کھاتی ہوں، لیکن کھانا کھا کر 2 وقت تو ضرور کھانے کی عادی ہوں. تو یہ یاد رکھیے گا کہ اماں بھی جو ہے وہ کھانا کھا کر 2 وقت جو ہے وہ پان کھانے کی عادی تھی. اب جو پتا توڑتی ہوں تو پان کی خوشبو منہ میں جو رکھا تو یہ معلوم ہوا کہ اتردان میں رکھی ہوئی گلوری گلے میں آ گئی. یہ مطلب یہ پان کے بارے میں کہ وہاں کا پان کیسا تھا. تو یہ پان کے بارے میں کہ پان جو تھا وہ اس کی خوشبو منہ میں جو رکھا تو معلوم ہوا کہ عطر کی طرح عطر کی گلوری قلعے میں آ گئی. کہتے ہیں کہ محمد شاہ رنگیلے کی کوکلا بائی جیسا پان کھاتی تھی. لال قلعے میں تو یہ یاد رکھنا آپ نے کہ محمد شاہ رنگیلے کی کوکلا بائی جیسا پان کھاتی تھی. لال قلعے میں تو اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کو نصیب ہوا، مگر میں کہتی ہوں کہ اگر وہ پرستان کے اس پتے کو ایک دفعہ صرف سونگھ لیتی تو ساری عمر سر دھلتی رہتی. یعنی وہ کہتی ہیں کہ محمد شاہ رنگیلے کی کوکلا بائی جیسا پان کھاتی تھی. کہتے ہیں کہ لال قلعے میں اسے مطلب کوکلا بائی سے پہلے یا بعد میں وہ پان کسی کو نصیب نہیں ہوا، لیکن اماں بھی کہتی ہیں کہ وہ پرستان کا پان اتنا ڈیلیشیس، اتنا ذائقے دار تھا کہ اگر وہ صرف ایک دفعہ سونگھ بھی لیتی تو ساری عمر سر دھونتی رہتی. مشک و عنبر پڑے ہوئے کتھا وہ پان کے اندر جو لگاتے ہیں، تو اس میں مشک اور عنبر بیٹا یہ بہت جو ہے قیمتی خوشبوؤں کے نام ہے. مشک و عنبر 2 قیمتی خوشبوؤں کے نام ہے. پڑے ہوئے کتھے اور سچے موتیوں کے چونے. چونا آپ کو پتہ نا پان میں ایک سفید سا چونا لگاتے ہیں، تو موتی بھی چونکہ سفید ہوتے ہیں، تو سچے یعنی اصلی موتیوں کے چونے کا پان بھی اس کے آگے بے حقیقت ہے. جب سانس لیتی تھی نئی سے نئی خوشبو کی لپٹیں آتی تھی. جی تو بچوں، آج ہم نے سبق کے حصہ میں بڑے نخروں سے جایا کرتی تھی سے خوشبو کی لپٹیں آتی تھی کہ حصہ کی پڑھائی مکمل کی. امید ہے آپ کو لیسن اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور ان 2 صفحات سے ریلیٹڈ جتنے بھی معروضی سوالات اور مختصر سوالات کے جوابات ہیں ان کا کانسیپٹ اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس سبق کی پڑھائی یعنی ریڈنگ ہم مکمل کریں گے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.